Hello students, welcome back to in our GP tutorial, and today we are going to see the exercise on chapter number 19. So chapter क्या है हमारा life cycle of star. Okay, so let's see. So first question देखते हैं यहाँ पे, search and you will find. A. Our galaxy is called dash dash. It's Milky Way. Question B. For measuring large distance, dash dash is used as a unit. It's light year. C. The speed of light is dash dash kilometer per second. It's 3 lakh kilometer per second. Question number D. There are about dash dash in our galaxy. It's 100 billion stars. Question number E. The end of the stage of the sun will be dash dash. It's a white dwarf. Question number F. Stars are born out of dash dash clouds. It's a nebula. G question. Milky Way is a dash dash galaxy. It's a spiral galaxy. Okay. Question number H. Stars are spheres of dash dash gas. It's a hot gas. I. The masses of other stars are measures relative to the mass of dash dash. It's a sun. J. Light takes dash dash to reach us from the sun while it takes dash dash to reach us from the moon. Its light takes 8 minutes and takes about 1.3 seconds to reach us for the moon. Now the next question. K. The larger the mass of the star, the faster is its dash dash. It's a rate of evolution. L. The number of fuels used in the life of a star depends on its mass. Now the next question. Question number 2. Who is telling lies? यानी कि यहाँ पे अगर ट्रू है तो हमें लिखना नहीं है, अगर इनकेस फॉल है तो हमें सही यहाँ पे सेंटेंस भी लिखना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज यूज टू मेजर टाइम. सो द आंसर इज फॉल. सो सही स्टेटमेंट क्या है? लाइट ईयर इज यूज टू मेजर अ डिस्टेंस. तो ये क्या करता है? डिस्टेंस में भी. एंड स्टेज ऑफ अ स्टार डिपेंड्स ऑन इट इज इनिशियल मास. यस, इट्स ट्रू. Question number C. A star ends its life as a neutron star. When the pressure of its electrons balance its gravity. Answer is false. So सही statement क्या होगा? Neutron star gravity is balanced by neutron pressure. Question number D. Only light can emit from the blank hole. Not a blank, it's a black hole होना चाहिए वहाँ पे. आंसर क्या है? इट्स फॉल. सो सही स्टेटमेंट क्या है? अ ब्लैक होल डज नॉट अलाउ इवन लाइट टू एस्केप. नेक्स्ट ई क्वेश्चन. द सन विल पास थ्रू द सुपर जायंट स्टेज ड्यूरिंग इट इज इवोल्यूशन. आंसर इज फॉल. सो सही स्टेटमेंट है हमारा द सन विल पासेस थ्रू अ रेड जायंट स्टेज ड्यूरिंग इट इज इवोल्यूशन. एफ. द सन विल एंड इट इज लाइफ as a white dwarf. Answer is true. Yes. ना अभी यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो हमें क्वेश्चंस दिए और इनके हमें आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं. लेट्स सी. एक क्वेश्चन दिया है, हाउ डू स्टार्स फॉर्म? स्टार कैसे फॉर्म होते हैं? सो आंसर इज स्टार्स आर फॉर्म फ्रॉम अ ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड एज अ नेबुला. Due to gravity, the gas comes together, become hot and starts glowing to form a star. यानी कि स्टार कैसे बनते हैं? यहाँ पे जो ह्यूज क्लाउड होते हैं कि जिसमें गैस होता है, डस्ट होता है, इसे नेबुला फॉर्म होता है. और यहाँ पे ड्यू टू द ग्रेविटी जो गैस यहाँ पे इकट्ठा होती है, हॉट गैस, और इससे क्या होता है? धीरे धीरे स्टार हमारा बन के निकलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. सो देखो क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया है, व्हाई डू स्टार्स इवॉल्व? सो यहाँ पे स्टार इवॉल्व कैसे होता है? स्टार्स इवॉल्व बिकॉज दे स्लोली यूज अप देयर फ्यूल. एज द फ्यूल changes, the star size and temperatures also changes.
यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे इसमें चेंजेस होते हैं वैसे वैसे यहाँ पे ये क्या होता है, स्टार्स इवोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर द 3 एंड स्टेज ऑफ स्टार, यानी कि यहाँ पे स्टार एंड होता है, इसके 3 स्टेज बताओ। सो द फर्स्ट स्टेज इज जब यहाँ पे व्हाइट ड्वार्फ होता है, या सेकेंड न्यूट्रॉन स्टार होता है, या थर्ड वन ब्लैक होल होता है, तभी यहाँ पे ये एंड स्टेज दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाई वॉज द नेम ब्लैक होल गिवन? सो आंसर इज, it is called a black hole because its gravity is so strong that nothing, not even light, can escape, so it looks completely black. So that's why it's called as a black hole. ठीक है? Question number E. Which types of stars end their life as a neutron star? Answer is वेरी मैसिव स्टार्स, मैसिव यानी कि जो बड़े होते हैं, मैसिव स्टार्स एंड देयर लाइफ एज न्यूट्रॉन स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 4, अभी क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, इफ यू आर द सन, अगर आप सन है, राइट अबाउट योर प्रॉपर्टीज इन योर ओन वर्ड। अगर आप सन है तो आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये हमें खुद के वर्ड में लिखना है। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 4, इफ you are the sun, write about your properties in your own words. Okay, so answer is, I am the sun, मैं sun हूँ। a star made up of a hot gas, star कैसे बनते हैं, hot gases से बनते हैं। I give heat and light to the earth, तो मैं ये हॉट गैस यानी कि हीट में प्रोवाइड करता हूँ, वैसे यहाँ पे अर्थ पे भी मैं हीट लाइट में ही प्रोवाइड करता हूँ। विच सपोर्ट लाइफ, ओके, I am very big and located at the center of the solar system. मैं सबसे बड़ा हूँ और जो सोलर सिस्टम है इसके सेंटर में मैं हूँ। And all planets revolve around due to my gravity. और सभी जो प्लैनेट्स है ये मेरे ग्रेविटी की वजह से मेरे पूरे यहाँ पे आजू बाजू में घूमते रहते हैं। सो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया है, डिस्क्राइब व्हाइट ड्वार्फ्स।